this is a special segment this Friday evening. Tonight, we're going to talk to some of the people, some of the unsung heroes of our country. Ordinary people doing extraordinary things. What really makes this different and heartwarming is the recognition that has come through for these people. Regular, ordinary people toiling relentlessly at the grassroots level in our country. These individuals are not the rich and the famous or the powerful who get your topmost awards, the most respected, reputed awards of our country. But they are actually real India. And they are some of them belong to the most marginalized groups in our country. They remain unsung, unrecognized, unheard of all of their lives, but it doesn't matter to them because it's the work that they are doing that really drives them. Tonight on the show, we have three such people, three such Padma Shri awardees whose work we all must celebrate and look forward to. How they beat all odds in their life is a story of inspiration and should be a story for inspiration for all of us. How they every day struggle to get where they are now, and obviously not for any award, but out of their own passion for what they do. Tonight, I have three of these guests. First one is Dulari Devi. She was awarded for her contribution to the Mithila folk art. She belongs to the Malla caste. She was married off at the age of 13. She actually learned this Mithila art when she worked as house help, domestic help, at an artist's place. And there she asked her employer to help her, to teach her. And she learned this art at that point of time. Since then, never looked back, traveled across India on government contracts. She earns a livelihood by also teaching the Madhubani painting to children. Paints every day because that's what her life is about. The other guest we're going to have tonight is Jitendra Singh Shanti, awarded for his social work that he did, especially during the COVID times, the pandemic times, and especially during the second wave. But that's also been his life. This social work has also been his life. The organization that he runs has cremated about 56,000 bodies in 25 years, unclaimed bodies, or from families who are too poor to pay for the cost of cremation for the final rites themselves. He transported patients in unclaimed bodies even during COVID, held free cremation for these segments, worked tirelessly round the clock. You will remember how horrifying the death rate was during the second wave. And Mr. Jitendra Singh and his organization was one of those entities that worked tirelessly at such a time. Our third guest is Shyam Sundar Paliwal, ex-village council head in Rajasthan's Rajsamand district. He is also known as the father of ecofeminism. So he essentially is an environmentalist, but he also links it to other social causes. He's planted sapling for every time there is news in celebration of a girl child. He's planted 111 trees for every girl child in his village. The intent of this initiative was to improve the sex ratio, also to spread awareness about this issue. So let's say good evening to all three of them joining me right now. And सबसे पहले मैं दुलारी देवी के पास जाना चाहूँगी. दुलारी देवी, बहुत बहुत बधाई आपको. जो पद्मा अवार्ड आपको मिला, हम सब ने उस दिन देखा टीवी पे आपको, और आपने मुझे बताया गया प्रधानमंत्री को एक पेंटिंग भी गिफ्ट की. ये क्या गिफ्ट था, क्या आप हमें बता सकते हैं? क्या दिया आपने मोदी जी को? जी, पहले बहुत बहुत नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. तो मोदी जी का जो पेंटिंग दिए, हम जो मिले थे हमको मोदी जी, जो तो बोले जो क्या आप लिख रहे हैं, तो हम बोले जो हाँ, हम तो मैथिली में बोलते हैं,
थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलते हैं। बोले हाँ हम लिख रहे हैं। ऐसे आप जो आप पर एक पेंटिंग लिखे हैं, जो मधुबनी जे आप गए थे तो हम आपको तो देखे नहीं, तो उस आप पर हम एक पेंटिंग लिखे, उसमें मिथिला का माछ का हवाई जहाज बनाए हैं और लोग सबके देखे बनाए हैं देखते हुए, जो मोदी मोदी करके आपको पुकार रहे हैं, वही दर्शाए हैं आपको पेंटिंग जहाँ पर हम बनाए हैं। तो करे अरे वाह अच्छी बात है, मोदी जी बोले। जी, बहुत ही अच्छा लगा होगा उनको भी कि आपने उनके लिए अलग से ये बनाया। दुलारी देवी जी, थोड़ा हमें आपके जो ये आपकी आर्ट है, जो आप पेंटिंग्स करती हैं, उसके बारे में बताएं। इतने सालों से जो आप कर रही हैं, क्यों आपने ये सीखा और क्या आपको इसमें अच्छा लगता है? देखिए हम लोग गरीब परिवार से है, मछुआरा परिवार, हम लोग मलाह मलाह कहा जाता है हम लोग का कास्ट का। जो हम लोग मछली मारते थे, हमारा पिताजी और हम 4 बहन थे, छोटे में पिताजी गुजर गए तो हम लोग को बहुत कष्ट हुआ। तो माँ हमको चारों बहन के पाले, एक भाई हमारा परीक्षण मुखिया है और पिताजी के नाम मुसर मुखिया है। तो हम लोग गरीब परिवार से हैं, हम लोग मजदूर के काम करते थे, पेंटिंग नहीं जानते थे। हमारे गांव में पद्मश्री महासुंदरी देवी थे और कर्पूरी देवी, उनको सबके महासुंदरी घर में हम काम करते थे, झाड़ू पोछा का। तो उन लोग को देखते थे तो हम लिखते हुए मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग जो बोलते हैं, जो तो हमको बहुत अच्छा लगता था। ऐसे कर्पूरी माँ जी थे, उनको छोटानी देवरानी, तो वही उसी आंगन में सभी थे। तो एक दिन क्या हुआ, तो अपने आंगन गए ना, तो अपने आंगन के नीप करके लकड़ी से स्केच किए, कहीं माछ, कहीं सुआ, कहीं पेड़। तो हमारे माँ जी आए मजदूर करके, तो अरे ये क्या बना रखे हैं, जो लकीर चीर फाड़ने से भिखमंगा हो जाता है। तो हम कहे नहीं नहीं, जो वो चाची लोग बनाते हैं कर्पूरी माँ जी और महासुंदरी देवी जी, तो उनको देखते हैं तो बहुत शौक होता है सीखने का, बनाने का, इसीलिए हम बनाए। तभी तो हमको रंग कागज नहीं थे। तो उसके बाद तो कर्पूरी माँ जी हमको रख लिए उसी आंगन में। महासुंदरी देवी और कर्पूरी देवी का एक ही आंगन था। तो उसके बाद जो वो भेदभाव नहीं जानते थे, कर्पूरी माँ जी रख लिए हमको अपने पास में। तो उनके पास में रहे। उसके बाद जो 1 महीना का ट्रेनिंग हुआ महासुंदरी देवी के यहाँ, तो उसी जगह हम 1 महीना ट्रेनिंग किए। उसके बाद कर्पूरी माँ जी के घर में रहे, तो वो रख भी लिए। खास करके कभी कभी अंगना घर जाते थे हम, तो रात रात के पेंटिंग बनाते थे वो लोग, तो हम भी देखते थे, हम भी स्केच करते थे। कर्पूरी माँ जी को साथ रहते थे। तो एक दिन बोला कि अरे तो नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, आप नाम लिख लो। तो नाम सिखाए कर्पूरी माँ जी ने हमको। और वहीं से शुरू हो गए आपका ये जर्नी, वहीं पे आपने उनसे सब सीखा और उसके बाद तो आपने कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं और अब आप लोगों को सिखाती भी हैं। दुलारी देवी, बने रहिए हमारे साथ। 2 और लोग भी हैं जिन्होंने भी जिनको भी अपने अच्छे काम के लिए रिकग्निशन मिला। जितेंद्र सिंह शंटी, आपको भी कंग्रेचुलेशंस। आज मिरनाव के दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि ये जो आपने इतना अच्छा आप काम करते हैं, और स्पेशली अभी पैंडमिक के समय जब इतना बुरा हाल था और लोगों को आपने ऐसे मदद की, इसका आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आया? क्या आपने सोचा कि ये चीज़ एक है जो मुझे करनी चाहिए? कहते हैं कि कुछ छोटा सा हादसा कई बार हमारा पूरा जीवन बदल देता है। वही मेरे साथ हुआ आज से 25 साल पहले, जब एक शमशान घाट पे एक व्यक्ति को मैंने लोगों की जली हुई लकड़ियों के टुकड़े उठाते हुए देखा शमशान घाट से। मैंने सोचा शायद चोरी कर रहा है। जब पूछा तो उसने बताया कि मैं चोरी नहीं कर रहा जी, मैं उत्तर प्रदेश से आया था बच्चे का इलाज कराने, उसकी डेथ हो गई है, इतने पैसे नहीं कि संस्कार कर सकूं। कोई चारा ना देखकर, सब जगह पैसे मांगे नहीं मिले, मैं लोगों की जली लकड़ी के टुकड़े उठा के संस्कार करने जा रहा हूँ।
उस दिन हमें महसूस हुआ कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोग शादी ब्याह पे करोड़ों रुपए लगाते हैं, मकान पे लगाते हैं, कार पे लगाते हैं, और वहीं दिल्ली के अंदर एक आदमी के अपने बच्चे जलाने के पैसे नहीं है। हमने उसका संस्कार किया और दोस्तों ने आपस में सलाह की, तो सब कहने लगे यार प्रशासन नहीं करता, सरकार नहीं करती। मैंने कहा वाह सरकार, वाह प्रशासन, हम क्यों नहीं कर सकते। हमने एक शुरुआत की, पहला संस्कार करके उसके बाद हमने एक संस्था बनाई शहीद भगत सिंह सेवा दल। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1 महीने में हमने 100 भी संस्कार कराए हैं। अभी भी आज जिस मेरी आपकी बात हो रही है, आज मैंने 4 संस्कार कराए हैं, लावारिस या गरीब जो होते हैं। लेकिन वो करते करते हजारों डेड बॉडीज कैरी करने के बाद जब कोरोना आया, तो उस कोरोना में हमारा 25 साल का एक्सपीरियंस काम आया कि डेड बॉडी को कैसे पैक करते हैं, उसको एम्बुलेंस में कैसे लोड करते हैं, ऊपर से कैसे उतारते हैं, फिर संस्कार कैसे करते हैं। क्योंकि इस बार का जो भयानक मंजर था, उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि संस्कार करने वाले लोग ही नहीं आए साथ में घर से। और एक दिन में 40 से 50 डेड बॉडी हमने घरों से भी उठाई। हम खुद लेके आते थे, खुद पैक करते थे, खुद उतारते थे, खुद उसको लकड़ी लगा के संस्कार करते थे। ऐसा भयानक मंजर हमने जीवन में नहीं देखा जो हमारे देश के अंदर इस समय में हुआ। और कई जगह पे बच्चों ने हाथ नहीं लगाया। बहुत बड़ी बात है कि उनके खून ने हाथ नहीं लगाया। और वहां भी हमको मौका मिला, शहीद भगत सिंह सेवा दल में हमारे जो ड्राइवर्स थे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मेरे बच्चे दोनों, मेरे बेटे भी साथ लगे रहते हैं, जोतजीत, मनीष, सबने मिलकर काम किया। और 4000 डेड बॉडी हमने कोविड की, 4000 से ज्यादा ही है शायद, 200 के करीब, उनको क्रीमेट भी किया, उनको घरों से भी लेके आए। उनकी एशेस को भी हम हरिद्वार में जाके प्रवाहित करके आए। क्योंकि इस कोविड ने जो हमारी हिंदू रीति है उसमें होता है कि अस्थि कलश ले जाना, कंधा देना, मुखाग्नि देना, सब खत्म कर दिया जी। तो वो काम सारे हमने शहीद भगत सिंह सेवा दल ने संभाले। मैं थैंक्स करता हूँ भारत सरकार का और राष्ट्रपति जी का, जिन्होंने हमारे जैसे तुच्छ लोगों को ढूंढ के निकाला और हमको घर से बुला के इस बारे में अवार्ड दिया। उसके लिए नहीं, उनका आप बहुत ही बहुत लोग तो हैं। आप ऐसे, आपने एकदम गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया। तुच्छ तो बिल्कुल ही नहीं। आप ही लोग जो तीनों मेरे साथ बैठे हैं, और आप जैसे बहुत जिनको इस बार और पहले भी रिकग्निशन मिला है। दिस इज़ ट्रू इंडिया, और यही है हमारे इंडिया के हीरोज़। जितेंद्र सिंह जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी। उस समय भी हमने आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, आपके दल के बारे में बहुत सुना, आपने जो काम किया कितना मुश्किल था लोगों को ढूंढना और उनको कन्विंस करना कि आपको ये करना है क्रिमेशन कोविड बॉडीज़ का। क्योंकि उस समय जैसे आपने कहा, काफ़ी उनमें तो फैमिली मेम्बर्स ना आ पा रहे, कुछ खुद हॉस्पिटल में, कुछ रहे नहीं रहे या पहुंच नहीं पाए। इस तरीके की भी बहुत थी। एम्बुलेंस वाले भी बहुत ड्राइवर्स जो थे वो डर रहे थे कि रोज़ रोज़ हमें ये करना पड़े, कल हमारा नंबर ना लग जाए। तो ये आपने कि उस समय जो फर्स्ट और सेकेंड वेव की पीक थी, तो कैसे लोगों को कन्विंस किया कि ये हमें साथ मिलके करना ही है? बना चुके थे, मन बना चुके थे कि चाहे मौत आ जाए हम काम को बंद नहीं करेंगे। जब मैं शमशान में काम कर रहा था, मुझे माननीय उपराष्ट्रपति जी का फोन आया था कि वेंकैया नायडू जी का, पता नहीं कहाँ से नंबर लिया उन्होंने। कहने लगे मुझे, मेरे ड्राइवर ने कहा जी को फोन आया नायडू जी का। तो मैंने सोचा कान से लगा दे, मेरे हाथ गंदे थे, मैं संस्कार करा रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं, उनके पहले पीए साहब ने कहा कि उपराष्ट्रपति जी बात करेंगे। तो मैं चौंक गया। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि हम आपको टीवी पे देख रहे हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप करते रहिए, सारा देश आपके साथ है। उससे हमें बहुत बड़ा मोराल बढ़ गया। मैं जब काम कर रहा था, लोगों का फोन आया था, शंटी जी आप मौत से खेल रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं आप, आपको परवाह नहीं है परिवार की, परवाह नहीं है आपको अपनी। तो मैंने एक जवाब दिया उनको। मैंने कहा जी, जो मिलिट्री होती है, जो फौजी होता है, वो देश की लड़ाई लग रही हो और घर में मर जाएगा तो उसको कभी शहीद नहीं कहा जाएगा, उसे परमवीर चक्र नहीं मिलेगा। हम 25 साल से सेवा कर रहे हैं देश की, मानवता की। आज देश के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई है, हम अगर घर में मर गए, दुनिया मर रही है घरों में, तो हम भी मर गए तो हमें कौन पूछेगा। हमको मरना है तो कर्म भूमि में मरना है, सेवा करते हुए मरना है। ईश्वर करे में वहीं पे मौत आ जाए, लेकिन हम देश के लिए काम करेंगे, देश के लिए जान हाजिर है हमारी। परमात्मा हमको मौत दे तो वहीं दे। मेरे दोनों बच्चे, मेरी मिसिस, सब पॉजिटिव दोबारा हुए, लेकिन परमात्मा ने शक्ति दी। एक ड्राइवर हमारा जरूर इसमें शहीद हो गया, आरिफ, जो 25 साल से काम करता था हमारे पास। बहुत बड़ा लॉस हुआ। मैंने उसके बाद सारे ड्राइवर्स को पूछा, मैंने कहा डर तो नहीं गए? तो थोड़ा डर तो जाहिर था,
और मैंने उनसे जब पूछा कि हमारा झगड़ा एक दूसरे देश के साथ हुआ है, उन्होंने हमारा एक फौजी मार दिया है, अब हमको आगे बढ़ना है या पीछे हटना है? उन्होंने कहा जी अब आगे बढ़ के मारना है। तो मैंने कहा तैयार हो जाओ, हमने कोरोना को मारना है, हम नहीं डरेंगे चाहे मौत भी आ जाए। ये देश के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आई है, हमने अपना फर्ज निभाया है, जी कोई एहसान नहीं किया है, ये हमारे कोई एहसान नहीं किया है। ये जो तगमा मिला है ना जी, ये तगमा हमें जिम्मेदारी मिली है, हमें देश की सेवा करने का बहुत बड़ा एक मौका दे दिया है सरकार ने, और कह दिया कि शंटी जी अब और ज्यादा काम करिए, जी जान तली बन के काम करिए। जी ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। रहिए हमारे साथ, बने रहिए शंटी जी। लेट मी ऑल्सो गो अक्रॉस टू श्याम सुंदर पालीवाल। पालीवाल जी, आपको भी बहुत बधाई। और ये जो अवार्ड आपको दिया गया है आपके इतने सालों के काम के लिए, ये तो होना ही था, और आज पूरे देश को आपकी कहानी भी पता चलनी चाहिए। पर मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है पालीवाल जी, कि आप खुद को सोशल एक्टिविस्ट समझते हैं, जो गर्ल चाइल्ड के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए निकले हैं, या एनवायरमेंटलिस्ट देखते हैं जो पेड़ पौधों के बारे में भी बात करें? जी, हम लोगों ने गांव में समग्र ग्रामीण विकास पर काम किया है। हमने सबसे पहले गांव में जो ग्राम पंचायतों की व्यवस्था है, सरकारें, केंद्र सरकार लोकसभा में और राज्य सरकारें विधानसभा में बैठकर जो कानून बनाती है, नियम बनाती है, सरकारी गांवों में सरकारें जो गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाती है, उन पर हमने काम शुरू किया था 2005 में। क्या होता है, गांव में सरपंच, सचिव ये 10 बजे आते हैं और पंचायत में गांव के लाभार्थी जैसे किसान, पशुपालक ये सवेरे 7 बजे 8 बजे अपना घर छोड़ते हैं। तो हमने सरपंच रहते हुए रात्रिकालीन ग्राम पंचायतें चलाई और सरकार की विभिन्न योजनाएं गांव के लोगों तक पहुंचाई और आदर्श गांव का निर्माण किया। ये कोशिश की कि बोर्ड लगाने से गांव आदर्श नहीं होते हैं, गांवों के नागरिकों को आदर्श बनाना पड़ेगा। हमने देश का पहला वातानुकूलित ग्राम पंचायत भवन बनाया था 2005 में, और बाद में जाकर वह राजीव गांधी सेवा केंद्र और फिर अटल सेवा केंद्र के नाम से पूरे देश में जाने लगे। फिर हमने काम शुरू किया जल संरक्षण पर। जो पानी हमारे गांव में 500 फीट 600 फीट से नीचे था, और था तो बहुत भारी पानी था, उस पानी को हमने जल संरक्षण के माध्यम से जमीनी स्तर पर लाने का काम किया। गर्मियों में हमारे गांव में पानी जमीन पर बहता है। उसके बाद हमने वृक्षारोपण का काम किया। तो वृक्षारोपण करते करते मेरी बेटी की डेथ हुई, तो मुझे लगा कि नहीं, बेटियों के नाम पर पेड़ लगाना चाहिए। तो फिर हमने गांव में जितनी भी लड़कियों का जन्म होता है, उस जन्मोत्सव को हमने खुशी के रूप में गांव में एक उत्सव के रूप में मनाकर हर बेटी के नाम पर 111 पौधे लगाकर एक इस तरह का काम किया कि देखो, हमें बेटी बचानी पड़ेगी, हमें पानी बचाना पड़ेगा, हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे, हमें गोचर भूमि जो हमारी कॉमन लैंड है गांव के लिए, जिसमें तीतर, मोर, खरगोश, पैंतर, बंदर रहता है, उस जमीन को भी बचानी पड़ेगी और लोगों को प्रकृति की तरफ ले जाना पड़ेगा। ये काम करते करते हम लोगों ने ये इसको सामाजिक काम भी कह सकते हैं, इसको पर्यावरण के कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, इसको बेटी बचाने से भी जोड़ सकते हैं। तो जिसको जो करता है, हमारा काम तो ये है कि जिस गांव में मेरा जन्म हुआ है, आज देखिए राम जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है, तो राम जन्मभूमि से ज्यादा पवित्र मेरा गांव है, क्योंकि मेरे पिताजी का वहां पर जन्म हुआ है, मेरे माता पिता का वहां पर अंतिम संस्कार हुआ है, हमारी कई पीढ़ियां जहाँ पैदा हुई है, वह गांव हमारे लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। और इसके माध्यम से देखिए बहुत सारे काम हुए कि गांवों से शहरों की तरफ जो पलायन हो रहा है, उस पर भी रोकथाम लगी है। एक अच्छा मैसेज हुआ है, यहाँ से गया है। और इस कोरोना काल ने तो हम सब लोगों को एहसास करा दिया है कि नहीं, हमें प्रकृति के साथ जीना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े पूंजीपति अभी पिछले वक्ता जो कह रहे थे कि कोरोना काल में, वास्तव में मैं उनकी बातों से इतना प्रभावित हुआ हूं कि उस काल को हमने देखा है। बहुत बड़े बड़े पूंजीपति जो गांवों से शहरों की तरफ पलायन करके वहां महानगरों में रहते थे, वो हमारे गांव के स्कूल में 15-15 दिन क्वारंटीन रहे और उनको एहसास हुआ है कि नहीं, मेरे लिए अगर सबसे सुरक्षित स्थान इस धरती पर कोई है तो मेरा गांव है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, जी जी बोलिए। तो इस तरह के काम करके हमने गांव के समग्र विकास को लेकर काम किया और यह प्रतिज्ञा ली सरपंच रहते हुए कि मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और घर कुछ नहीं ले जाऊंगा। सरकार की विभिन्न योजनाओं में किसी भी कीमत पर लीकेज नहीं होना चाहिए। सरकार जो योजना बना रही है उसको पूरी तरह मेरे गांव में पहुंचाऊंगा और मेरे गांव को, जो मेरा तीर्थ स्थान है, उसको विकसित करने के लिए सरकारें पैसा देती है, तो उस पैसे का हर हाल में सदुपयोग करूंगा, मेरे गांव के लोगों को लाभ पहुंचाऊंगा। इस तरह के काम हम पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। तो उसके बाद जाकर आदर्श गांव बने। बाद में सरकारों ने भी
माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सांसद आदर्श गांव और गांधी ग्राम और कई तरह की योजनाएं चली है। पर देखिए, ये काम गांव आत्मनिर्भर होंगे तो फिर गांवों से शहरों की तरफ पलायन नहीं होगा। और गांव के हर व्यक्ति को देखिए, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, किसान, हर माध्यम से गांव के हर एक व्यक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। गांव के वापस गांव में पुरानी व्यवस्था लागू होनी चाहिए। गांव का चर्मकार, गांव का सुथार, लोहार, कुम्हार, गांव का हर एक व्यक्ति को पुराने काम शुरू करवा के उसको रोजगार देना चाहिए। इस तरह के हमने काम किए। हमने लाखों आंवले के पौधे लगाए तो आंवले के आधारित उद्योग, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में हमने बांस लगाया तो बांस के आधारित उद्योग, एलोवेरा से आधारित उद्योग, जैविक खेती के माध्यम से लोगों को ज्यादा पैसे दिलाकर, आप देखिए गाँव में गोपालन का काम हो तो 3-3 हजार रुपए किलो घी बिकता है। किसान को आत्मनिर्भर करके गांवों से शहरों की तरफ जो पलायन हो रहा है ये उसको आपने रोकने बहुत बड़ी बात कही। कुछ सालों पहले जब मैं राजस्थान में इलेक्शन के पहले जब वहाँ गई और कुछ गाँव में, तो मैंने देखा कि जैसे वहाँ पे जो यंगस्टर्स है, नई पीढ़ी, वो तो है ही नहीं, क्योंकि सबको ही काम के लिए, नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। और क्योंकि गांव में कुछ है नहीं, कोई स्कोप नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। जो खेती बाड़ी में कुछ लोग हैं बस वही है, वो भी उनके माँ बाप ही ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे आज पूछूं, अब आपको इतने साल हो गए वहाँ पे, आपने इतने सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए, कि अब आप अपने गांव के लिए क्या करना चाहेंगे? पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल जी क्या करना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे शरीर के रोम रोम खड़े हो गए जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने मुझे पद्मश्री अलंकृत पहनाते समय ये कहा कि श्याम सुंदर जी कैसे हो आप। तो मुझे लगा कि अरे क्या, मैंने कहा साहब आप क्या कह रहे हो, आप मुझे नाम से जानते। तो उन्होंने कहा पालीवाल जी, मैंने आपका केबीसी का कर्मवीर पूरा एपिसोड देखा और मैंने आपकी कई कार्यक्रम देखता हूँ मैं आपको। तो मुझे लगा कि देखिए, देश के महामहिम को गांवों में निचले क्षेत्र पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं का भी जानकारी है कि कौन देश हित में काम कर रहा है, कौन हमारे किए हुए कामों को आगे बढ़ा रहा है। तो कितनी तेज नजर है इनकी, जो हम जैसे लोगों को उठाकर आज पद्मश्री के लिए उन्होंने चयन किया। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी मिले अलग से, तो प्रधानमंत्री जी ने कई लोगों से कहा कि देखो पालीवाल जी ने जल संरक्षण, वृक्षारोपण, इस तरह के बहुत सारे काम किए हैं, और अब पालीवाल जी आप प्राकृतिक खेती की तरफ आ जाओ। तो मैं समझा नहीं, मैंने कहा साहब जैविक खेती तो हम कर रहे हैं। बोले नहीं, प्राकृतिक खेती, एक बार पैसा लगा के किसान को सालों साल तक आमदनी हो, इस तरह की खेती पर आप काम कीजिए। तो अब मैं उस काम को, जो प्रधानमंत्री जी का आदेश हुआ है, जिन्होंने हमें चयन करके, मैंने कहा सब ये तो कर रहे हैं। बोले इसीलिए तो हम लोग आपको यहाँ तक लाए हैं, आप काम करे हो तभी लाए हैं। तो उनके आदेश की पालना करेंगे और देश में हमारे गांव से शुरू होकर पूरे उस जिले में और जिले से बाहर निकलकर हम प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को आत्मनिर्भर करने का काम करेंगे जी, और उसी को आगे बढ़ाने का काम, किसानों को आत्मनिर्भर करने का काम करेंगे। बहुत ही बढ़िया। दुलारी देवी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती थी। अब आप यहाँ तक आ गए, आप इतने सालों से पेंटिंग्स बना रहे हैं, सिखा भी रहे हैं सबको। अब तो देश ने आज आपकी कहानी सुन ली। अब इसके आगे आप क्या करना चाहेंगी? वो एक चीज़ जो अभी तक आपने नहीं करी, जो आप करना चाहेंगी? देखिए, पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रपति के देते हैं। राष्ट्रपति जी जो बोला है, दुलारी देवी, धन्यवाद दुलारी देवी, तो बहुत अच्छा लगा हमको। और उसके बाद मोदी जी से मिला तो बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी है। मोदी जी बोले जे क्या लिखते हो, तो हमको यही इच्छा है जो वो जो बोले थे उनको के बोलने के, वो जो बोले थे उनको हम आगे बढ़ाएंगे। बच्चे लोग का जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, बच्चे लोग के पेंटिंग सिखाएंगे। जैसे हम तो बहुत गरीब से गुजरे हुए हैं, अभी को बच्चा को तो सब चीज़ उपलब्ध है, तो बच्चे को आगू बढ़े ना हमको इच्छा है, धर्म है जो पूरा देश के पालन करेंगे, बच्चे लोग के आगू बढ़ाएंगे। और मोदी जी को धन्यवाद देते हैं जो हमारे जैसा गरीब लोग के आन करके पद्मश्री मिला हमको। राष्ट्रपति जी से मिलना देखना बहुत अच्छा लगा।
तो हम तो सपना में भी नहीं सोचते थे हम लोग को मोदी जी मिलेंगे, राष्ट्रपति मिलेंगे। आज हम बहुत खुश हैं। हम देश में बच्चे लोग को सिखाएंगे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बहुत बनाए हैं पेंटिंग, पेड़ बचाओ पर बहुत बनाए हैं। अभी भी हमारे गांव में नीतीश जी हमारे गांव के मुख्यमंत्री है, बिहार का वो 108 में स्कूल खोला है बच्चे लोग के लिए, तो उसमें भी हम टीचर का भरे हैं। बोले हो गया तो हम बच्चे लोग के सिखाना बहुत हमको धर्म होगा। अब बच्चे लोग को आगे बढ़ाना, कला को बचा के रखना। ये कला को बचाना बहुत ज़रूरी है। आपने तो बहुत देखा है अपनी ज़िंदगी में दुलारी जी, उस समय जिनके साथ आप रही, जिनसे सीखा, उन्होंने चाहे छूत पात ना माना हो, पर अब चारों तरफ गांव में तो होता ही था। बच्चों की, लड़कियों की अगर वहाँ पे बर्थ होती थी तो उसको लेके बहुत होता था। बेटी बचाना अब जाके एक बड़ी बात बनी है और जिसके बारे में लोग बात करते हैं। तो इन चीज़ों में आपका आगे जाके क्या इसमें भी आप कुछ करना चाहेंगी? अभी भी आपको लगता है क्या कि गांव में हमारे देश के ये मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, बेटी बचाओ? हाँ, बहुत ज़रूरी है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बहुत ज़रूरी है। हम पेंटिंग भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बनाते हैं। गांव में, देश में हम ऐसा ही करेंगे। जो सरकार के योजना होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो पेंटिंग बनाएंगे, ये बच्चे लोग को, नया बच्चे लोग को जो अब है नया पीढ़ी का, उनको सिखाएंगे अपना कला, अपना बहुत लगन से सिखाएंगे। जी, आपकी दुलारी देवी, आपकी कहानी सुन के और श्याम सुंदर पालीवाल जी और जितेंद्र सिंह शंटी जी की कहानी सुन के तो मुझे लगता है कि यही होना चाहिए ज़िंदगी का उसूल, कि एक अपने मन का कुछ ढूंढ लो और उसी की सेवा में लग जाओ, और चाहे जितने साल रहे, हार नहीं माननी चाहिए। एक ना एक दिन ज़रूर देश के प्रधानमंत्री भी आपको रिकग्नाइज करेंगे। शुक्रिया, आप तीनों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद हमसे आज बात करने के लिए। Really the ordinary people, but the real India. This is what these three symbolize for me, and this is why I wanted to bring their stories to you. Three of the many who got recognized this time and in the previous years. And who are the real heroes who must be recognized? Often the media headlines get limited to the celebrities, to the stars, to the big artists, to the big sports players, to the filmmakers and the actors who've got the award. But the awards, to me and for all of us, should actually be about people like them and the work that they do in our country. Thank you so much for joining us.